یہ ٹوٹا ہوا دل ہے بچا کیا مانگوں رب سے میں کیا پتا. امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے that if you've given your best and you have, right, well done. ماما بابا پتہ نہیں آج ماما کو کیا ہوا ہے. وہ نہ مجھے اسکول لینے آئی تھی اور نہ ہی مجھ سے بات کر رہی ہیں. سمین یہ ہو کیا سب ٹھیک ہے؟ نو سب ٹھیک ہے ایسے ہی بس. نہیں وہ میں اور ریرو ہی باتیں کرتے جا رہے ہیں تم ہم سے بات ہی نہیں کر رہی. تب ہیرو کو بھی لگا شاید آل گڈ نا. پتہ نہیں ماما کو آج کیا ہوا ہے. یہ شائلہ کا نہیں ہوئی کب سے اس کا انتظار کر رہے ہیں. اب میں فون کر کے چیک کروں. گڈ ایوننگ ایوری ون. گڈ ایوننگ. ہیلو ایوری ون، ہاؤ آر یو؟ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے کیسے ہیں؟ کیسے آنا ہوا تمہارا یہاں؟ انکل آپ لوگ تو مجھے دیکھ کر اس طرح حیران ہو رہے ہیں جیسے گھر سے نکالا گیا تھا، جنت سے نہیں آ گیا واپس. اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ کیوں؟ یہ بات حیرانی کی نہیں ہے. چمکتا ہوا پتھر. ایک دور دراز وادی میں ایک عجیب چمکتا ہوا پتھر تھا. رات ہوتے ہی وہ آسمان کی طرح روشن ہو جاتا مگر صبح ہوتے ہی عام پتھر بن جاتا. لوگ کہتے تھے کہ اس میں ایک قدیم راز چھپا ہے. 17 سالہ حماد نے اس راز کو جاننے کا فیصلہ کیا. وہ کئی گھنٹے سفر کے بعد وادی میں پہنچا. راستے میں اسے ایک بوڑھا کسان ملا جس کی فصل پانی نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ رہی تھی. حماد نے قریبی چشمے سے نہر بنانے میں اس کی مدد کی. آگے ایک زخمی عقاب زمین پر گرا ہوا تھا. اس نے اس کا علاج کیا اور آزاد کر دیا. رات ہونے پر وہ چمکتے ہوئے پتھر کے پاس پہنچا. جیسے ہی اس نے پتھر کو ہاتھ لگایا اس کے اندر سے ایک نرم روشنی نکلی اور سامنے ایک قدیم دروازہ ظاہر ہو گیا. دروازے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں صرف ایک کتاب اور ایک تختی رکھی تھی. تختی پر لکھا تھا، قدرت اپنے راز صرف ان لوگوں پر ظاہر کرتی ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. کتاب میں زمین کو سرسبز بنانے، پانی بچانے اور درخت اگانے کے طریقے درج تھے. حماد وہ علم اپنے گاؤں لے آیا. چند برسوں میں بنجر کھیت سرسبز ہو گئے، نئے باغات لگے اور گاؤں خوشحال ہو گیا. جب لوگوں نے پوچھا، کیا تمہیں خزانہ ملا تھا؟ حماد مسکرا کر بولا، ہاں، مگر وہ سونا نہیں تھا. وہ علم تھا جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی. سبق: سب سے قیمتی خزانہ وہ علم ہے جو دوسروں کی زندگی میں آسانی، خوشحالی اور امید پیدا کرے. چمکتا ہوا پتھر. ایک دور دراز وادی میں ایک عجیب چمکتا ہوا پتھر تھا. رات ہوتے ہی وہ آسمان کی طرح روشن ہو جاتا مگر صبح ہوتے ہی عام پتھر بن جاتا. لوگ کہتے تھے کہ اس میں ایک قدیم راز چھپا ہے. 17 سالہ حماد نے اس راز کو جاننے کا فیصلہ کیا. وہ کئی گھنٹے سفر کے بعد وادی میں پہنچا. راستے میں اسے ایک بوڑھا کسان ملا جس کی فصل پانی نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ رہی تھی. حماد نے قریبی چشمے سے نہر بنانے میں اس کی مدد کی. آگے ایک زخمی عقاب زمین پر گرا ہوا تھا. اس نے اس کا علاج کیا اور آزاد کر دیا. رات ہونے پر وہ چمکتے ہوئے پتھر کے پاس پہنچا. جیسے ہی اس نے پتھر کو ہاتھ لگایا اس کے اندر سے ایک نرم روشنی نکلی اور سامنے ایک قدیم دروازہ ظاہر ہو گیا. دروازے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں صرف ایک کتاب اور ایک تختی رکھی تھی. تختی پر لکھا تھا، قدرت اپنے راز صرف ان لوگوں پر ظاہر کرتی ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. کتاب میں زمین کو سرسبز بنانے، پانی بچانے اور درخت اگانے کے طریقے درج تھے. حماد وہ علم اپنے گاؤں لے آیا. چند برسوں میں بنجر کھیت سرسبز ہو گئے، نئے باغات لگے اور گاؤں خوشحال ہو گیا. جب لوگوں نے پوچھا، کیا تمہیں خزانہ ملا تھا؟ حماد مسکرا کر بولا، ہاں، مگر وہ سونا نہیں تھا. وہ علم تھا جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی. سبق: سب سے قیمتی خزانہ وہ علم ہے جو دوسروں کی زندگی میں آسانی، خوشحالی اور امید پیدا کرے. چمکتا ہوا پتھر.
एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहाँ सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें ख़जाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था। वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहाँ सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें ख़जाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था। वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहाँ सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें ख़जाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था। वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया।
रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज़ बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज़ हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें ख़जाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बिन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज़ बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज़ हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें ख़जाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बिन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज़ बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज़ हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें ख़जाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बिन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज़ बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया।
चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गांव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म है जो दूसरों की जिंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक जख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर जाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गांव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गांव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म है जो दूसरों की जिंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक जख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर जाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गांव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गांव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म है जो दूसरों की जिंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक जख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर जाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गांव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गांव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म है जो दूसरों की जिंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता।
लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें ख़जाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था। वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें ख़जाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था। वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें ख़जाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था। वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा।
जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक ज़ख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया।
जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म है जो दूसरों की जिंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बिन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक जख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म है जो दूसरों की जिंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बिन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक जख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म है जो दूसरों की जिंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बिन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक जख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था, वो इल्म था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती खजाना वो इल्म है जो दूसरों की जिंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बिन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है।
17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक जख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहाँ सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें ख़जाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था। वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीबी चश्मे से नहर बनाने में उसकी मदद की। आगे एक जख्मी उकाब ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने इसका इलाज किया और आज़ाद कर दिया। रात होने पर वो चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, इसके अंदर से एक नरम रोशनी निकली और सामने एक कदीम दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहाँ सिर्फ एक किताब और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, कुदरत अपने राज सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर करती है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। किताब में ज़मीन को सरसब्ज बनाने, पानी बचाने और दरख्त उगाने के तरीक़े दर्ज थे। हमाद वो इल्म अपने गाँव ले आया। चंद बरसों में बंजर खेत सरसब्ज हो गए, नए बागात लगे और गाँव खुशहाल हो गया। जब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें ख़जाना मिला था? हमाद मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर वो सोना नहीं था। वो इल्म था जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सबसे कीमती ख़जाना वो इल्म है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी, खुशहाली और उम्मीद पैदा करे। चमकता हुआ पत्थर। एक दूर दराज वादी में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर था। रात होते ही वो आसमान की तरह रोशन हो जाता, मगर सुबह होते ही आम पत्थर बन जाता। लोग कहते थे कि इसमें एक कदीम राज छुपा है। 17 साला हमाद ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कई घंटे सफ़र के बाद वादी में पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। हमाद ने करीब